आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए पॉलीमरेज वर्सेस आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज डेफिनेशन क्या है इसकी? डीएनए पॉलीमरेजेस आर ए ग्रुप ऑफ एंजाइम्स दैट आर यूज्ड टू मेक कॉपीज ऑफ डीएनए टेम्पलेट्स essentially used in DNA replication mechanism. These enzymes make new copies of DNA from existing templates and also function by repairing the synthesized DNA to prevent mutations. DNA polymerase catalyzes the formation of the phosphodiester bond which makes up the backbone of DNA molecule. It uses a magnesium ion in catalytic activity to balance the charge from the phosphate ग्रुप। तो मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज और एंजाइम्स का एक ग्रुप है जो डीएनए की कॉपीज बनाने के काम में आता है और डीएनए रेप्लिकेशन में इसका बहुत यूज होता है। व्हाट आर डीएनए पॉलीमरेजेस? डीएनए पॉलीमरेजेस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय आर्थर कॉर्नबर्ग इन लाइसेट्स ऑफ ई कोलाई इन 1956. The enzyme is found and used in the DNA replication of both prokaryotic and eukaryotic cells. Several types of DNA polymerase enzymes have been discovered, with the first one to be discovered named DNA polymerase first. Each of these types play a major role in replication and DNA repair mechanism. However, DNA polymerases are not used for initiating the synthesis of new strands, but in the extension of already existing DNA or RNA strands which are paired with a template strand. तो DNA polymerase जो है सबसे पहले आर्थर कॉर्नबर्ग ने डिस्कवर किया था 1956 में ई कोलाई के अंदर, और यह एंजाइम रेप्लिकेशन के टाइम पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरीके के सेल्स में काम करता है। और कई तरह के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए हैं, जिनको हम ये स्पेशली 3 टाइप के होते हैं, जिनको हम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कहते हैं। और सभी का जो मेजर रोल है वो रेप्लिकेशन में है और डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में है। तो ये डीएनए या आरएनए के टेम्पलेट पर काम करते हैं, यानी उसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं डीएनए को। DNA polymerase starts its mechanism after a short RNA fragment is known as a primer is created and paired with a template strand. DNA polymerase act by synthesizing the new DNA strand by adding new nucleotides that match those of the template, extending the 3' end of the template chain. Each nucleotide is linked with a phosphodiester bond. The DNA polymerase uses energy from the hydrolysis of the phosphorhydride bond that is between the 3 phosphates nucleoside triphosphate attached to each free base nucleotides. The addition of a nucleotide to a growing DNA strand forms a phosphodiester bond between the phosphate of the nucleotide to the growing chain using the high energy phosphate bond of hydrolysis, releasing 2 distal phosphates known as पायरोफॉस्फेट। तो यह जो मैकेनिज्म है डीएनए पॉलीमरेज की, ये एक शॉर्ट प्राइमर के ऊपर जो है वो शुरू होती है। शॉर्ट प्राइमर पर डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अटैच हो जाता है और अटैच होने के साथ में डीएनए स्ट्रैंड को लगातार एक्सटेंड करता है। और यह जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, ये नए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है, नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता जाता है। कहाँ पर? 5' एंड से ये स्टार्ट करता है और 3' एंड पर ये आगे न्यूक्लियोटाइड्स को लगातार जोड़ता जाता है। यह न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। यह पॉलीमरेज जो है वो एनर्जी का यूज करता है न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए, और इसमें हाइड्रोलिसिस होता है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड का। जो ये बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के बीच में अटैच्ड होता है। एडिशन जब न्यूक्लियोटाइड का होता है डीएनए के ग्रो होने के लिए, तो उनके दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता जाता है और चेन जो है वो लंबी होती चली जाती है। डीएनए पॉलीमरेज आर वेरी एक्यूरेट इन देयर मैकेनिज्म विद मिनिमल एरर्स ऑफ लेस 1 error for every 10⁻⁷ nucleotides. Some types of DNA polymerase have the ability to
proofread and remove unmatched bases of nucleotides and correct them. They also correct post-replication mismatches by monitoring and repairing the errors by distinguishing mismatches of the new strand from the template strand sequences. तो जो भी mismatch होते हैं उनको भी ये repair करने का काम करता है. The eukaryotic cells contain 5 DNA polymerases: alpha, beta, gamma, delta and sigma. Polymerase gamma is found in the cell mitochondria and it actively replicates the mitochondrial DNA, while polymerase alpha, beta and delta are found in the cell nucleus, hence are involved in the nuclear DNA replication. तो polymerase जो है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं: अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सिग्मा. पॉलीमरेज गामा इज फाउंड इन द सेल माइटोकॉन्ड्रिया. ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता है और एक्टिवली जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को रेप्लिकेट करने का काम करता है. बाकी के जो पॉलीमरेज हैं वो सेल न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और न्यूक्लियर डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं. पॉलीमरेज अल्फा एंड डेल्टा आर मेजरली applied and active in diving cells, hence involved in replication, while polymerase beta is active in both diving and non-diving cells, hence it is involved in the repair of DNA damage. यह फिगर है डीएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर और टाइप्स का. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 तरीके के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं. अब आते हैं हम डीएनए पॉलीमरेज की संरचना पर. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज. द डीएनए पॉलीमरेजेस जनरली हैव ए कंजर्व्ड स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर डिफाइनिंग द वाइटल रोल इन द सेल फंक्शन विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. डीएनए पॉलीमरेजेस आर मेड अप ऑफ सब डोमेन्स रिजेंबलिंग एन ओपन राइट हैंड एज पाम, फिंगर्स एंड थंब. तो ये जो है कैसे होते हैं, सब डोमेन से बने हुए होते हैं और पाम, फिंगर्स और थंब के इंप्रेशन में होते हैं. द पाम कंटेन्स द कैटालिटिक एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन इट्स एक्टिव साइट्स. द फिंगर्स प्ले ए मेजर रोल इन न्यूक्लियोटाइड रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग. द थंब इज फॉर बाइंडिंग ऑफ द डीएनए सबस्ट्रेट. तो ये तीनों जो फिगर्स हैं, तीनों का जो रोल है वो क्या है. पाम जो है वो कैटालिटिक एसेंशियल अमीनो एसिड्स को एक्टिव साइट्स पर जोड़ता है और जो फिंगर्स हैं वो कहाँ मेजर रोल प्ले करती हैं, न्यूक्लियोटाइड के रिकॉग्निशन में और उसकी बाइंडिंग करने में. और थंब जो है वो डीएनए सबस्ट्रेट की तरह बाइंड करके काम करता है. देयर इज ए डोमेन फाउंड बिटवीन द फिंगर एंड द थंब नोन एज पॉकेट विच इज मेड अप ऑफ 2 रीजन्स, दैट इज द इंसर्शन साइट एंड द पोस्ट इंसर्शन साइट. द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड टू द इंसर्शन साइट while the new base pair bind in the post insertion site. Other subdomains along with these domains are specific for each family and each has essential function in DNA replication. However, these subdomains are different for each polymerase. अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली ए. एक एक करके हम सभी फैमिली के संरचना के बारे में जानेंगे. तो सबसे पहले है स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली ए. Beside the already discussed subdomains, family A polymerase additionally has a 5' to 3' exonuclease which is used to remove the RNA primers from the Okazaki fragments. Some family A groups also have a 3' to 5' exonuclease activity which function is proofread the DNA. तो यहाँ पर दोनों स्थितियां मिलती हैं. मेन स्थिति तो 5' to 3' डायरेक्शन में है और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है. यह आरएनए प्राइमर को रिमूव करने में काम करती है. ओकाजाकी फ्रैगमेंट से आरएनए प्राइमर को अलग करने में काम करती है. और दूसरा जो इसका ग्रुप है जो 3' to 5' डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दिखाता है, यह डीएनए का क्या करती है, प्रूफ रीडिंग करती है. अब आते हैं नेक्स्ट फैमिली पर, स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली बी. They also possess the basic subdomains with extremely active 3' to 5' exonuclease to correct the errors of DNA replication. ये जो है वो क्या करती है, एक्सट्रीमली एक्टिव है और 3' to 5' डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी
दर्शाती है। और इस एक्टिविटी से क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में जो भी एरर्स होती हैं, जो भी गलतियां होती हैं, उसका करेक्शन करने का यह काम करती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट फैमिली एक्स पर, स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली एक्स। These family groups have the thumb, palm and finger subdomains which are the structurally part of N-terminal or on the 31 kDa polymerase fragment। ये फैमिली, इस फैमिली के अंदर थंब, पाम और फिंगर सबडोमेन्स पाए जाते हैं और यह N-टर्मिनल का पार्ट होता है और ये 31 किलो डाल्टन पॉलीमरेज फ्रैगमेंट से जुड़ती है। The palm in this family contains 3 aspartic acid motifs. The fingers have helices M and N containing amino acid residues. The N terminal is connected to an 8 kilodaltons amino terminal domain which contains a 5' deoxyribose phosphate lyase which is essential in base excision repair। तो यहाँ पर ये 3 तरीके के ग्रुप होते हैं, थंब, पाम एंड फिंगर सबडोमेन्स, और इनका कितना वेट होता है, कितने किलो डाल्टन्स के ये वेट होते हैं और किस तरीके से इनका फंक्शन होता है, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं। अब नेक्स्ट फैमिली है स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली बाई। द एंड टर्मिनल ऑफ दिस ग्रुप कंटेन्स द कैटालिटिक कोर ऑफ द पाम, फिंगर्स एंड thumb. They also have a C terminal which has a conserved tertiary structure of a 4-stranded beta sheet supported as one side by 2 alpha helices which are also known as little finger domain. They play a role in DNA binding and it is essential for complete polymerase activity. तो यहाँ पर N टर्मिनल ग्रुप जो है वो पाया जाता है और पाम, फिंगर्स एंड थंब जो है वो एक कैटालिटिक कोर की तरह काम करते हैं। सी टर्मिनल पर जो है टर्शरी स्ट्रक्चर में 4 स्ट्रैंडेड बीटा शीट जो है वो अल्फा हेलाइसिस को, 2 अल्फा हेलाइसिस को और बीटा शीट को सपोर्ट करती हैं, विच आर ऑल्सो नोन एज लिटिल फिंगर डोमेन, जिसको हम लिटिल फिंगर डोमेन भी कहते हैं। दे प्ले ए रोल इन डीएनए बाइंडिंग। इनका जो मेजर रोल है वो है डीएनए को बाइंड करना और कंप्लीट पॉलीमरेज एक्टिविटी जो है वो इसका एक आवश्यक कार्य होता है। हाउएवर दिस फैमिली लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी अनलाइक द अदर फैमिलीज। डीएनए पॉलीमरेज टाइप्स। अब हम आते हैं डीएनए पॉलीमरेज के प्रकार पर। पहला है यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज टाइप्स। इसमें कौन कौन से हैं? पॉलीमरेज वाई, पॉलीमरेज अल्फा, पॉलीमरेज डेल्टा एंड पॉलीमरेज सिग्मा। तो पॉलीमरेज वाई जो है वो टाइप ए पॉलीमरेज है जिसका मुख्य फंक्शन जो है रेप्लिकेशन है और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का रिपेयर करने का काम है। इट ऑल्सो फंक्शन बाई प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग करना इसका काम होता है। म्यूटेशन ऑन पॉली वाई सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द माइटोकॉन्ड्रियल DNA causing autosomal mitochondrial disorders. Polymerase alpha, sigma and polymerase delta, these are the type B polymerase enzymes and they are the main polymerases applied in DNA replication. ये तीनों polymerase जो हैं वो कैसे हैं? मुख्य polymerase हैं जिनका मुख्य कार्य जो है वो DNA replication में होता है। इसके बाद हम आते हैं पॉलीमरेज बीटा, पॉलीमरेज म्यू एंड पॉलीमरेज लैम्डा। दीज आर टाइप 3 और फैमिली एक्स ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम। ये टाइप 3 फैमिली कहलाती है और फैमिली को हम एक्स ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम्स भी कहते हैं। पॉलीमरेज बीटा हैज ए शॉर्ट पैच बेस एक्सिशन रिपेयर मैकेनिज्म वेयर इट रिपेयर्स एल्काइलेटेड और ऑक्सीडाइज्ड बेसिस। पॉली lambda and poly mu are important for rejoining DNA double strand breaks due to hydrogen peroxide and ionizing radiations respectively. Next है polymerase N, polymerase L and polymerase K. They are type 4 family. Type 4 है ये फैमिली Y polymerases के नाम से जानी जाती है। मेजरली
इसका काम जो है वो डीएनए को रिपेयर करना होता है और इसका जो मैकेनिज्म है उसको हम ट्रांसलेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। दे आर प्रोन टू एरर्स ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस। इनके द्वारा जब डीएनए सिंथेसिस होता है तो एरर्स होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो ये इसका मेन फंक्शन है। ट्रांसलेशन सिंथेसिस पॉलीमरेजेस आर एक्टिवेटेड बाय स्टॉल्ड रेप्लिकेटिव डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट है टर्मिनल deoxynucleotidyl transferase. TDT function by catalyzing the polymerization of deoxynucleoside triphosphate to the 3' hydroxyl group of a preformed polynucleotide chain. TDT is a non-template directed DNA polymerase. It was first detected in the thymus gland. अब आते हैं हम यूकैरियोटिक के बाद में प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेजेस पर। This is a type A or family A polymerase enzyme that was initially isolated from E. coli and most abundantly found in E. coli. इसको सबसे पहले कहाँ से आइसोलेट किया गया था? E. coli से आइसोलेट किया गया था और यह E. coli के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसको हम टाइप A या फैमिली A पॉलीमरेज के नाम से भी जानते हैं। Its main function is accession repair of DNA strands from the 3' to 5' direction to the 5' to 3' direction as an exonuclease. इसका काम जो है वो क्या है? एक्सेशन रिपेयर करना है और यह एक्सोन्यूक्लियस के रूप में अपना काम करती है 3' से 5' डायरेक्शन की तरफ से और 5' से 3' डायरेक्शन में। It also helps with the maturation of Okazaki fragments, which are short DNA strands that make up the lagging strand during DNA replication. Its role during replication is the addition of nucleotide at the RNA primer and it moves along the 5' to 3' direction. The binding site for DNA polymerase first is known as octyl glucoside. Binding site जो है वो octyl glucoside कहलाती है। नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बाद में डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। इट बिलोंग्स टू द टाइप बी और फैमिली बी ऑफ द पॉलीमरेज। इसको हम टाइप बी या फैमिली बी के नाम से भी जानते हैं। मेजर फंक्शन इसका जो है वो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दर्शाता है 3' से 5' डायरेक्शन में और रेप्लिकेशन को यह स्टार्ट करता है और डीएनए स्ट्रैंड जब डैमेज हो जाते हैं तो ये रेप्लिकेशन को रोकने का भी काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड is found in the replication fork to help in directing the activities of the other polymerases. Next है DNA polymerase third. This is the primary enzyme that is used in DNA replication belonging to the family C or type C. यहाँ पर अब इसको हम कहते हैं family C या type C और यह एंजाइम जो है वो सिंथेसिस के लिए नए जो स्ट्रैंड्स हैं उनकी सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है और 3' एंड पर ये OH ग्रुप के साथ में ये जोड़ने का काम करता है। प्राइमर पर अटैच होकर 3' डायरेक्शन में ये अपना सिंथेसिस का काम करता है। इसकी जो एक्टिविटी है वो 3' से 5' डायरेक्शन में होती है और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ. It belongs to the family Bi and it is involved in the non-targeted mutagenesis. Its activation is based on the stalling activity of the replication fork. When it is activated, it creates a checkpoint, stops replication and gives time to properly repair lessons in the new DNA strand. It is also involved in the repair mechanism of translation synthesis. इसका जो मुख्य काम है वो रिपेयर करना है ट्रांसलेशन सिंथेसिस के दौरान. It does not have nuclease activity, therefore it is prone to error in DNA replication. DNA polymerase 5. It belongs to the family Y with high regulatory activity. It is produced only when DNA is damaged and it requires translation synthesis. It also lacks exonuclease functions and hence it cannot proofread the synthesis of DNA replicas, making it less efficient. अब आता है टाक डीएनए पॉलीमरेज. बहुत इंपॉर्टेंट डीएनए पॉलीमरेज है जिसको हम टाक मीन्स होता है थर्मस एक्वेटिकस. थर्मस एक्वेटिकस जो है वो एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है जो हॉट स्प्रिंग्स के अंदर पाया जाता है, जिससे
इसका जो पॉलीमरेज है वो हाई टेम्परेचर पर सरवाइव करता है। और इस पॉलीमरेज का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रोल जो है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में किया जाता है। तो इसको हम थर्मस एक्वेटिकस के शॉर्ट फॉर्म के रूप में इसको टाक, TAQ, T for thermus and AQ means aquaticus DNA polymerase. It is a thermostable type of DNA polymerase that was initially isolated from a thermophilic eubacterial known as Thermus aquaticus. It is abbreviated as TAC or TAC Pol. Pol means polymerase. It is commonly used in polymerase chain reaction to amplify short strands of DNA. यानी DNA को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसको एम्पलीफाई करते हैं, तो उसमें हम टाक पॉलीमरेज का यूज करते हैं। ड्यू टू इट्स थर्मोफिलिक नेचर इट इज एबल टू विदस्टैंड डीनेचुरेशन दैट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग PCR, हेंस इट रिप्लेस DNA पॉलीमरेज फ्रॉम E. coli। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ DNA पॉलीमरेज पर। The mechanism of DNA polymerase is referred to as a two-metal ion mechanism. That is, two metal ion act as active site for stabilizing the transmission of replication. The first metal ion acts by activating the hydroxyl group which attacks the phosphate group of the DNTPs, and the second metal ion stabilizes the negative charges and builds on the left oxygen and chelating phosphate groups. अब हम कंपेयर करेंगे DNA पॉलीमरेज वर्सेस RNA पॉलीमरेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं DNA पॉलीमरेज। इट इज एन एंजाइम दैट सिंथेसाइजेस द DNA. DNA polymerase mechanism is during replication whereby it synthesizes new DNA strands. It synthesizes a double-stranded DNA molecule. Its replication mechanism is initiated by a short RNA primer. It inserts nucleotides after finding the free 3' OH and by the assistance of the primer synthesizer primase enzyme. It adds DATP, adenine, thymine, DCTP, DGTP and DTTP to the growing new DNA strand. It has polymerization and proofreading activity. The rate of polymerization by DNA polymerase is about 1000 nucleotides per second in prokaryotes. DNA polymerase enzyme is faster, efficient and more accurate considering its proofreading activity. DNA polymerase has 3 different subtypes, type 1, 2 and 3. The DNA synthesis continues until the end when the strands ends, that is when polymerization stops. Thus, the entire chromosomal DNA is synthesized. अब आते हैं हम RNA पॉलीमरेज पर। It is an enzyme synthesizes the RNA. यह RNA को सिंथेसाइज करता है। RNA पॉलीमरेज functions during transcription, which is the synthesis of RNA. जब मैसेंजर RNA बनता है तो उस टाइम उसकी सिंथेसिस में RNA पॉलीमरेज का एक बड़ा योगदान होता है। It synthesizes a single stranded RNA मॉलिक्यूल। DNA पॉलीमरेज जो है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA को सिंथेसाइज करता है और RNA पॉलीमरेज जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करता है। इट डज नॉट नीड ए प्राइमर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। इट एड्स न्यूक्लियोटाइड्स डायरेक्टली. It inserts DATP, DGTP, DCTP and DUTP to the growing RNA strand. RNA polymerase only has a polymerization activity. The rate of RNA polymerase is 40 to 80 nucleotides per second. RNA polymerase is slower, inefficient and inaccurate. RNA polymerase has 5 different subtypes in eukaryotes. The polymerization is terminated when RNA polymerase finds the stop codon or termination codon on the nucleic acid strand. यह रेफरेंसेस हैं और सोर्सेस हैं. ये मटेरियल जो है वो इंटरनेट से लिया गया है और कोशिश की गई है कि ये टॉपिक जो है इस स्लाइड्स के अंदर पूरा कवर किया गया है और यहाँ पर ये टॉपिक जो है वो समाप्त होता है. थैंक यू.